Hello students, how are you? Class 11th Biology Chapter 13, that is topic is Calvin cycle and C4 pathway. Calvin cycle. The Calvin cycle is also called as a biosynthetic phase or dark reaction. Calvin cycle को हम बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं और इसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं. बायोसिंथेटिक फेज और डार्क रिएक्शन. The biosynthetic phase or dark reaction does not require light. बायोसिंथेटिक फेज और डार्क रिएक्शन के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इट यूटिलाइजेज ATP and NADPH molecules formed during light reaction for carbon fixation. डार्क रिएक्शन में बायोसिंथेटिक फेज में हम ATP और NADPH मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं जो उसके प्रोडक्ट होते हैं. जो कहाँ फॉर्म्ड हुए थे? ये फॉर्म्ड हुए थे लाइट रिएक्शन में फॉर कार्बन फिक्सेशन, दैट इज यूजिंग कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर. द डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा रीजन. डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है? लीव्स की स्ट्रोमा रीजन में होती है. It was discovered by Calvin in 1954 and is hence known as Calvin cycle. Calvin cycle को डिस्कवर किया था कैल्विन ने 1954 में, इसलिए इस साइकिल को इन्हीं के नाम पर कहा जाता है कैल्विन साइकिल. It is also known as C3 cycle. Melvin Calvin received Nobel Prize for discovering this pathway. Okay. Calvin traced the path of carbon by using the reaction. Reactive carbon, C in carbon dioxide, culture of unicellular alga, Corella, which were carrying out photosynthesis with normal carbon dioxide were exposed to carbon dioxide. 14 carbon dioxide. The algae were rapidly killed at different intervals of time by dropping them into hot methanol. The soluble product of photosynthesis were नहीं, इसमें क्या होता है? The soluble product of photosynthesis were separated by two-dimensional papers, chromatography. Radioactive compounds were identified by autoradiography. Calvin or the fixation of carbon dioxide can be studied in 3 major steps. Calvin cycle और फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम स्टडी करते हैं 3 मेजर स्टेप्स में. एक तो कार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल और रिडक्शन, रीजनरेशन ऑफ RUBP. कार्बोक्सिलेशन क्या है? Carboxylation is addition of carbon dioxide to compound and it need as enzymes carboxylase. कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन, ऐड होना, ठीक है, और एक कंपाउंड तैयार करना. इसमें ज़रूरत होती है कार्बोक्सिलेज एंजाइम की. इन दिस केस रिब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, RUBP, अर्लियर नॉन एज राइब्यूलोज डाइफॉस्फेट और RUGP. व 5C कार्बन इज द एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 5 कार्बन का होता है शुगर जो एक्सेप्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को. 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गेट अटैच टू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP. 5 शुगर कार्बन जो है 5 कार्बन का जो शुगर तैयार है हमारा, and result in the formation of 3 molecules of an unstable 6 carbon intermediate compound. This breakdown of 6 molecules of 3C compound, अब जो 6 molecules हमारे पास बन गए उनको 3
कार्बन में कंपाउंड में उसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसे फास्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। The enzymes RUBP carboxylase or Rubisco carries out the reactions. It is large protein and is found in abundance in chloroplast stroma. ये chloroplast stroma में abundant होते हैं. It is also the most abundant protein on earth. The first product of photosynthesis is a 3C compound. क्या होता है इसमें? जो फर्स्ट प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का हमारे पास हमें मिला है वो क्या है? 3 कार्बन का कंपाउंड है, द फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA, राइट? रिडक्शन, it involves reduction of PGA by using ATP and NADPH2 formed during photochemical phase. photochemical phase के समय पर हमारे पास जो तैयार हुआ था ATP और NADPH2 formed हुए थे. 6 molecules of PGA are reduced of 6 molecules of 1,3-biphosphoglyceric acid molecules by using 6 ATP molecules produced in the light reaction. लाइट रिएक्शन के प्रोडक्शन में हमारे पास ATP और NADPH जो हमें मिले थे वही यहाँ पर यूज होते हैं. लेटर बाय यूजिंग ऑल NADPH2 molecules 6 molecules of another product glyceraldehyde phosphate PGA or obtained glyceraldehyde phosphate exist in equilibrium, जो equilibrium with an isomer dihydroxytone phosphate and both are collectively known as triose phosphate. इनको collectively कहा जाता है triose phosphate, that is TP. ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट यानी कि PGAL इज अ 3 कार्बन के शुगर्स हैं एंड इज द फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस. ये सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में फॉर्म्ड होता है, राइट? रीजनरेशन ऑफ RUBP. रीजनरेशन में क्या होता है? रीजनरेशन इज द generation of RUBP molecules for the continuations of cycle. This process require 1 molecules of ATP. Regeneration में हमको 1 ATP की requirement होती है. Okay. The glyceraldehyde phosphate undergoes a series of reactions and ultimately by utilizing its 5 molecules and 3 molecules of ATP, 3 molecules of 5 carbon sugars RUBP are regenerated, again regenerated हो जाते हैं. The test 1 molecules glyceraldehyde phosphate is used to make other molecules like glucose, sucrose and starch. To make 2 molecules of 3 carbon sugar, the glyceraldehyde phosphate, 6 molecules of CO2 carbon dioxide are required. Then that means to make a 1 molecules of glucose 6 ton of Calvin cycle are required. Means हमको एक मॉलिक्यूल्स जो ग्लूकोज का बनेगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास मिलेगी, क्योंकि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C6H12O6. तो C6 यानी कि कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स चाहिए. जब कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स चाहिए और हर उसमें साइकिल में क्या होता है, एक कार्बन आपका रिलीज हो रहा है, एक कार्बन आपका बन रहा है, तैयार हो रहा है. तो हमको कैल्विन साइकिल को के कम से कम 6 टर्न करने पड़ेंगे. जब 6 टर्न आपके बनेंगे तभी तो आपका 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे. ओके, तो इसमें 6 टर्न्स होते हैं कार्बन के, है ना? तो इसमें क्या होता है, 6 CO2 1 ग्लूकोज, इसमें 18 ATP इन एंड 18 ADP बनता है. ठीक है, ओके. और 12 NADPH यानी कि 12 NADP, राइट, रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर इनकी. 12 NADP, 12 NADPH. C4 pathway. What is C4 pathway? C4 pathway is the very easy. C4 pathway में क्या होता है, वहाँ पर हम लोगों ने कौन सा एंजाइम्स यूज़ किया था? रुबिस्को, राइट. यहाँ पर जो आपका एंजाइम यूज होगा वो कौन सा होगा? यस,
PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम। C4 पाथवे जो होता है वो किस में होता है, पहले ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि दिस पाथवे वॉज वर्कड आउट बाय हैच एंड स्लैक 1965-1967 में इन्होंने इस पर वर्क किया था। मेनली ऑपरेशनल इन प्लांट्स ग्रोइंग इन ड्राई ट्रॉपिकल रीजन लाइक मेज, शुगर केन, sorghum, etc. Okay, in this pathway first stable product is a 4-carbon compound oxaloacetic acid, OAA, so called. As pathway plants have cranes anatomy, vascular bundles and surrounded by bundle sheath cells arranged in width like manner, characterized by large number of chloroplast, thick wall impervious to gases and absence of intercellular space. इसे क्रेन्स एनाटॉमी क्यों कहा जाता है? क्रेन्स एनाटॉमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो अपीयरेंस है, इनमें जो लीव्स का जो अपीयरेंस होता है, क्रेन्स एनाटॉमी, इट इज़ द डिफरेंट टाइप of anatomy appearance of the leaves due to the presence of mesophyll cells and bundle sheath cells. देखिए दोनों सेल्स की एक साथ अपीयरेंस की वजह से ही जो स्ट्रक्चर, जो एनाटॉमी बनती है लीव्स की C4 प्लांट्स में, वो क्रेन्स एनाटॉमी कहलाता है, जो कि सिर्फ आपको C4 प्लांट्स में ही देखने को मिलेगी और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। Okay, so the primary carbon dioxide acceptor in a 3-carbon molecules phosphenol pyruvate and is present in the mesophyll cells, जो कि mesophyll cells में present होती है। The enzymes responsible for the fixation is, जो enzyme इसके fixation में responsible है वो है PEP carboxylase enzymes, phosphenol pyruvate enzymes। Okay, और PEP केस भी कहते हैं इसे। It is important to register that the mesophyll cells lack ribosco enzymes. The C4 acid OAA is formed in the mesophyll cells. mesophyll cells में जो बनता है, जो तैयार होते हैं आपके, एक स्टेबल प्रोडक्ट तैयार होता है ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड और मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। ओके, ये C4 कार्बन के कंपाउंड है। It then form other 4 carbon compounds like malic acid and aspartic acid in the mesophyll cells itself, which are transported to the bundle sheath. जब ये बन जाते हैं तो ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का C4 एसिड जो हमारा बना है, जिसका फिक्सेशन हो गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने एटमोसफेयर से लिया और जो PEP में जाकर फिक्स हो गया, तो क्या बन गया हमारे पास? C4 एसिड मिल गया, फिक्सेशन हो गया, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ पर? बंडल शीट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। बंडल शीट में ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल जाता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है केल्विन साइकिल में, क्योंकि यहाँ पर केल्विन साइकिल चल रही है, फिक्सेशन बाय केल्विन साइकिल के द्वारा फिक्सेशन हो जाता है। अब हमारे पास फिर C3 एसिड बचे, वही C3 फिर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं कहाँ पर? मेसोफिल सेल्स में। C3 एसिड रीजनरेशन होता है उनका, वहाँ पर 2 ATP की रिक्वायरमेंट होती है, फिर फास्फोफिनोल पायरुवेट C3 वहाँ पर मिल जाता है। इसी तरह से ये साइकिल भी कितनी टाइम चलेगी आपकी? 6 टाइम चलेगी। ओके, 2 ATP की रिक्वायरमेंट है तो 6 × 2 तो कितने होगा? 12 ATP और 18 ATP के हमारे पास वो नीचे चली रहा है उसमें केल्विन साइकिल में, तो 18 + 12 कितने हुए? 30 ATP। तो यहाँ पर कितनी ATP की रिक्वायरमेंट है? 30 ATP की रिक्वायरमेंट है, राइट। ये है आपका पूरा C4 पाथवे, जैसा मैंने आपको अभी पूरा एक्सप्लेन किया है, इसमें आपको क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा पूरा, राइट। ओके, थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड।